education, or where are you today? या तो आप अपनी कॉलिंग को फॉलो कर सकते हो, पैशन को फॉलो कर सकते हो, या यू कैन गो फॉर दी मनी थिंग। उस टाइम भी उतना ही रेलेवेंट था सब्जेक्ट्स जिस तरह आज हम करते हैं कि नहीं, साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स। अब तो बच्चे खुद चूज करते हैं क्या पढ़ना है, खुद एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। You look at the curriculum now, and when you look at the curriculum when you were into a preschool or uh, into that culture or in that age, how is it has changed? जो पहले का अगर मैं करिकुलम की बात करूं, वो होलिस्टिक नहीं होता था। एंड फोर्सिंग अ चाइल्ड टू राइट हु इज 2 or 3 years old isn't, it's not fair। हम बच्चों को तो कह रहे हैं मोबाइल नहीं यूज करो, बट हम वो जो सेंटेंस बोलते हैं ना, हम खुद मोबाइल यूज करते करते कर रहे हैं। जो EQ है स्पेशली यंग स्टूडेंट्स के अंदर, वो थोड़ा सा डिक्लाइन किया है। वुड यू अग्री? पेरेंट भी ये चीज समझ जाए तो उनको कभी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत ना पड़े कि मेरा बच्चा आगे जाके क्या करियर चूज करना है। Welcome to Mike Session with Akash Gupta. It is a pleasure to have Mrs. Aarti Sehgal Gandhi with us today. It is a different introduction because ma'am has also started her journey 21 years ago. And Bachpan is one of our sponsors for this conversation and this podcast. So Bachpan has also had a journey of 21 years, and therefore it is a pleasure to introduce ma'am as the guest for this podcast. थैंक यू। पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले मैम एंड आई वाज जस्ट टॉकिंग, तो मैम टोल्ड मी कि मैम का करियर स्टार्टेड एज अ, मैम गॉट प्लेस्ड विद द कंपनी, एंड देन इट हैज बीन अ ग्रेट जर्नी। मैम ने बहुत सारे रोल्स, बहुत सारी अवार्ड्स, बहुत सारी चीज़ों को अचीव करा है। तो मैम थोड़ा सा वहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाउ डिड योर जर्नी with the whole education, or where are you today? How it all started? Yes, it has been a beautiful roller coaster ride, and it was a campus placement first time. I got placed in an MNC, and after working there for an year, I realized that that was not my cup of tea. We all have an inner calling, हम सबकी एक आवाज होती है that this is what we should be, और वो pacification नहीं थी उसमें। Although yes, a lot of money was there, but we have to, या तो आप अपनी कॉलिंग को फॉलो कर सकते हो, पैशन को फॉलो कर सकते हो, या यू कैन गो फॉर दी money thing. So I had chosen to follow my passion since I belong to the family of teachers. My mother, she is a retired teacher. My grandmother is a retired principal. My bua, my masi, everyone, they have been teachers. So my inner calling was to be a teacher. So I started from the scratch. I left there. Then I became a teacher, then a trainer, and then went into curriculum, academics. But academics and curriculum, teaching, training has been my core areas, and it has been a flourishing journey. मैम आपको स्कूल में आइडिया था दैट यू वांट टू परस्यू, मतलब यू वांट टू गो इनटू दिस स्ट्रीम, एंड हाउ डिड यू चूज एंड व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स डिड यू चूज? या उस टाइम भी उतना ही रेलेवेंट था सब्जेक्ट्स जिस तरह आज हम करते हैं कि नहीं, साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स? वाज इट सेम? It was different at that time. जैसे अगर हम कन्वेंशनल की बात करें, ट्रेडिशनल की बात करें, द फोकस वॉज मोर ऑन syllabus. The focus was more on the role of a teacher as a strict authoritarian. The role of a teacher is more of a, dictator kind. एंड मोर के बच्चों ने शांति से बैठना है, टीचर ने एंटर किया एंड जैसे नॉर्मल होता है, ओके, एक वो जो सॉन्ग नहीं आता, गुड मॉर्निंग मैम। अब तो थिंग्स हैव चेंज, चिल्ड्रन दे हैव स्टार्टेड यूजिंग हैप्पी मॉर्निंग मैम, hello ma'am, how are you? Or then the teacher asks, how are you feeling? I'm feeling exuberant, I'm feeling happy. So things have drastically changed. At that time, the focus was on to complete the syllabus. The focus was on rote memorization. Ab to gone are the days. It is more child centered. पहले लेक्चर मेथड पे बहुत ज़्यादा जोर होता था,
अब तो बच्चे खुद चूज करते हैं क्या पढ़ना है, खुद एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, एंड टीचर इज मोर ऑफ अ गाइड, अ मेंटोर, अ फैसिलिटेटर टेलिंग देम नाउअडेज. हाउ टू. राइट. एंड मैम, जैसे मतलब अ, आपका एक्सपीरियंस काफ़ी मतलब वास्ट है और आपने काफ़ी सारे रोल्स वो करे. जैसे हम आपने बताया कि आपकी कॉलिंग की वजह से यू चोज अ डिफरेंट पाथ, तो वाज देयर एन इवेंट और डिड समथिंग हैपन जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं यार, दिस इज नॉट समथिंग आई वांट टू डू, बट दिस इज समथिंग दैट आई वुड, मतलब ऐसा कोई इवेंट या ऐसी कोई चीज़, या यस. इट वाज जस्ट समथिंग दैट जस्ट केम इन फ्लो एंड. नहीं, ये एक होता है ना कि हम सोचते कुछ हैं, कई बार होता कुछ है. बट एक है कि शुरू से ही जब आते थे, मैं छोटी थी, मैं टीचर टीचर खेलती थी सब बच्चों को बिठा के. सबको था ये तो टीचर बनेगी, टीचर बनेगी. मैंने कहा नहीं, टीचर का तो स्किल चलो है, आई वांट टू ट्राई समथिंग एल्स आल्सो. सो आई डिड ट्राई. बट एक साल वर्क कर, एक वो कहते हैं ना, मजा मजा नहीं आ रहा यार, समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग. देयर इज मोर दैट आई कैन अकम्प्लिश. जैसे टीचिंग, अब अगर करिकुलम भी बनाना है, कुछ भी एकेडमिक्स में आना है, या लेसन प्लान्स बनाने हैं, या टीचर्स की हेल्प करनी है. बहुत एक मैं इंस्टेंस बताना चाहूँगी. जैसे मेरी मदर वॉज अ टीचर, वो स्कूल से आती थी, वही बंडल्स लेके आना, चेक करना, वही चीज़ें, मार्क्स वगैरह करना. तो मुझे लगता था नहीं, मैं ना अपनी मम्मा की ना कैसे हेल्प करूँ. मैं तब बोलती होती थी, मैं अगर होती ना, मैं ये टेस्ट वेस्ट सब बंद कर देती अगर मेरे हाथ में होता तो. तो दैट वाज ऐसे मजाक में बोला जाता था, बट कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आई, कुछ ऐसे हुआ दैट यस, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द करिकुलम. उस हिसाब से मैंने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अपग्रेड करी. तो मैंने जाना कि हाँ, ये सब चीज़ें कैन टेक अ बैक सीट. बहुत सारी और चीज़ें हैं जिससे हम बच्चों की अंडरस्टैंडिंग चेक कर सकते हैं. एक जो टेस्ट वाला वर्ड है, और फॉर्चुनेटली ओवर द ईयर्स ये टेक्स्ट टेस्ट वाला वर्ड हैज टेकन अ बैक सीट. इसकी जगह असेसमेंट्स आ गई हैं. एंड देर आर सो मेनी वेज टू असेस द चाइल्ड, कि मैं कैसे टीचर्स का बर्डन कम कर सकती हूँ, कैसे देर आर मेनी गुड पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस विच कैन बी फॉलोड, जहाँ टीचर भी इंजॉय करे, बच्चे भी इंजॉय करें. और कहने को एक टीचिंग प्रोफेशन है, बट ट्रस्ट मी, एक टीचर के पास घर पे भी टाइम नहीं होता, वो वही लगी रहती है. और बच्चे सोचते हैं काश मेरी मम्मा के पास थोड़ा सा और टाइम होता, मैं ये शेयर करती, हम यहाँ जाते. बट टीचिंग इज नॉट अ पार्ट टाइम प्रोफेशन, इट्स अ फुल टाइम प्रोफेशन. वेरी करेक्ट मैम. सो मतलब now you're working as a head curriculum planner and and an academician. So when you look at the curriculum now, and when you look at the curriculum when you were into a preschool or uh, into that culture or in that age, तो उससे और अभी में, and especially in the last 2-3 years जब से NEP आई है and NEP has started to kind of give it a framework कि these are the things that we should follow. So how is it has changed, and what is your experience for that particular preschool curriculum and the preschool curriculum that you have developed or is there in the in the society that is going on, तो उसके बारे में कुछ. राइट. वंडरफुल क्वेश्चन. जो पहले का अगर मैं करिकुलम की बात करूं, वो होलिस्टिक नहीं होता था. अ लॉट ऑफ फोकस वाज ऑन रोट मेमोराइजेशन, एकेडमिक्स, एंड लॉट ऑफ फोकस वाज ऑन हैंड राइटिंग ऑल्सो. अब हमें रिसर्च सेज कि 6 इयर्स तक बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट फास्टेस्ट पेस पे होती है, और जो बच्चे की डेक्सचरिटी है वो 6 इयर्स तक डेवलप होती है. एंड फोर्सिंग अ चाइल्ड टू राइट हु इज 2 or 3 years old isn't, it's not fair. And playful learning होनी चाहिए. Play is one of the birthright of every child. So खेल खेल में सीखना. And when parents become partners in learning, जब हम teachers का भी burden कम करते हैं, then that is exactly the holistic thing that takes place. पहले ये सब नहीं होता था. पहले it was more के books आ गई, यही फॉलो करना है, रट्टू तोते की तरह वही सीक्वेंस चल रही है, वही सॉन्ग्स ABCDEFG, वही बच्चे बैठे हुए हैं. सो मतलब क्रिएटिविटी, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे पहले इतना ध्यान नहीं दिया जाता था. नाउ विद द एडवेंट ऑफ NEP, द फोकस इज ऑन होलिस्टिक एडुकेशन, ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसमें हम सारे डोमेन्स की बात करते हैं. इवन पंचकोश डेवलपमेंट, दैट इज वन एंड द सेम थिंग, जस्ट इन डिफरेंट वेज. और इस बार जो NEP आया है, इट्स अ ब्यूटिफुल एमेलगमेशन, कि जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट क्या कहते हैं.
जो हमारे बहुत उन्होंने एग्जाम्पल्स लिए हैं, उसको एमालगमेट करके द फोकस इज ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशन ईयर्स पे इस बार बहुत स्ट्रेस किया गया है, जो पहले कभी भी नहीं हुआ। एंड फॉर फाउंडेशनल ईयर्स एक NCF-FS 2022 होल बाइबल डॉक्यूमेंट निकाला गया है, जो आज से पहले सिर्फ एक डॉक्यूमेंट आता था। NEP इससे पहले 1986 में आई थी, तो बहुत गैप के बाद अब 2020 में आई है। उसके बाद NCF आया है, जो कि फाउंडेशन ईयर्स का भी आया है, सेकेंडरी ईयर्स का भी आया है। सो इट्स वंडरफुल कि इतना ध्यान दिया गया है फाउंडेशन ईयर्स पे। तो इसमें what as an academic and curriculum head, what I have tried to develop in curriculum as a with my team is कि जो challenges पहले फेस हुए हैं उनको ओवरकम किया जाए। जैसे हर एक के लिए कुछ ना कुछ, लाइक द वर्ड करिकुलम। करिकुलम का मतलब है कि जितने भी लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं बच्चे की लाइफ में, तो एंड तो अब वो एक्सपीरियंसेस सिर्फ बुक से नहीं आ रहे, स्कूल से नहीं आ रहे, सिर्फ टीचर नहीं दे रही, बच्चा घर पे भी जा रहा है, पेरेंट्स की इंटरेक्शन से भी एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं। फिर क्या टीचर इज होलिस्टिकली डेवलप टू डेवलप द चाइल्ड होलिस्टिकली, क्या वो टीचर के अंदर खुद है, जो मेरे में है ही नहीं, मैं कैसे डेवलप कर पाऊंगी। सो एंड अ करिकुलम, इट्स अ होलिस्टिक करिकुलम। जैसे हम स्प्राउट की बात करें, वन ऑफ द बेस्ट करिकुलम्स, जो ये नहीं है कि हमने बनाया है या कुछ है, बट डेफिनेटली बिकॉज इट केटर्स टू द नीड्स ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, सबके लिए कुछ ना कुछ है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं, सबके लिए। और जब टीचर को एंड बीइंग अ टीचर, हैविंग वर्कड एज अ टीचर, आई नो द पेन एरियाज ऑफ अ टीचर, कि कितना इट्स अ हरक्यूलियन टास्क के लेसन प्लान बनाना, फिर क्या पढ़ाना, कैसे पढ़ाना, क्या पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करनी, ऑब्जर्वेशन कैसे करनी, वर्कशीट्स बनानी, असेसमेंट्स बनानी। अब विद स्प्राउट हमने सारा काम टीचर्स का इजी कर दिया है। Did you ever go to a preschool, or were you in that kind of a setup? मतलब, I am not sure. I remember I went to one of the preschools in Delhi, but उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब I am guessing उस टाइम पे what I've heard is कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा prevalent नहीं था preschool. So since you were coming from a family of teachers, were you into that kind of setup? या आपका वो वाला टाइम कैसा था? मेरा वो वाला टाइम, अगर मैं रिफ्लेक्ट बैक करूं, तो बहुत अच्छा था वो भी। हाँ, मैं भी गई थी प्री स्कूल में, वही जो बंगलोज में होता था ना, नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे बन गया, इट वाज अ रूम। तो स्प्रिंग बेल्स के नाम से दैट वाज अ प्री स्कूल। वहाँ पे सुबह एक ऑटो लेने आता था, आई यूज टू गो, और मेरे ना नेबर्स देखते होते थे, मम्मा को भी बोलते ये कहाँ इसको भेजते। उस टाइम बिल्कुल भी ट्रेंड ही नहीं था, कोई थे ही नहीं, बट सिंस माई पेरेंट्स वर वर्किंग, तो शायद उनको लगा कि यहाँ पे ये बिजी रहेगी, सो बाय डिफॉल्ट आई वेंट देयर। तो क्या टाइमिंग्स होते थे मैम उस टाइम पे preschool की? इतना, आई थिंक इट यूज टू स्टार्ट एट 9, क्योंकि आई टेल यू द रीजन ऑल्सो, मेरे फादर यूज टू लीव फॉर ऑफिस एट 9, वॉज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो और तब तक वो, मतलब 4-5 घंटे मैं वहाँ रहती थी, जिसमें सुबह पढ़ाई होती थी, फिर क्रेच भी था, इट वॉज अ क्रेच कम अ प्री स्कूल। तो फिर माय फादर यूज्ड टू कम ड्यूरिंग लंच टाइम, फिर मेरी मम्मा आती थी। सो ऐसा सेटअप था कुछ। And ma'am, do you think that going to such a setup gave you a boost to the overall development, or to your personality, or to you know your academic and your professional background? Yes, definitely. What I have observed and realized over the years is कि बच्चा ना प्री स्कूल में, अगर हम बच्चे को एकेडमिक्स पढ़ा रहे हैं, हम बहुत गलत कर रहे हैं। बच्चा प्री स्कूल में जाता है सोशो इमोशनल स्किल्स डेवलप करने के लिए। एकेडमिक्स तो कभी भी बच्चा डेवलप कर सकता है, बट वो जो अपने कंफर्ट जोन से निकल के एक दूसरी एनवायरनमेंट में जाना,
पीयर्स के साथ इंटरेक्शन करना, कुछ शेयरिंग करना, वहाँ से बहुत स्किल्स बच्चा सीखता है। कुछ एक्टिविटीज़, देन वो सीखता है कि एक रूटीन क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है, अच्छा इतने बजे स्कूल जाना है, उठना। So these seeds should be sown right from the beginning. That becomes part of your personality. That की creativity क्या है, वहाँ जाके you do coloring and जैसे भी करते हो, even if you do scribbling, तो ये सारे skills are very important. Academics तो कभी भी सीख सकता है, ABCD naturally, it is a natural way of acquisition. बट ये वाले स्किल्स आई फील कि जितनी जल्दी एक्सपोज होगा बच्चा, उतने ही अच्छा होगा उसकी ओवरऑल, जिसको हम होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड एनईपी हैव नाउ काइंड ऑफ बिकम सिनर्जाइज्ड वर्ड, जहाँ पे हम एनईपी की बात करते हैं, वहाँ पे ऑब्वियसली मन के अंदर एक थॉट प्रोसेस आता है या एक माइंडसेट के तहत एक थॉट आता है दैट ओके, इट्स अ होलिस्टिक डेवलपमेंट, and it also talks about foundational literacy and foundational numeracy. What exactly is this foundational literacy and foundational numeracy that NEP 2020 is talking particularly about? मतलब जो हमारा पहले करिकुलम या जिस तरह से पहले चीज़ें फॉलो होती थी, were they not uh, were they not giving a holistic development, or what are the different ways, मतलब ऐसा क्या different है कि NEP is now bringing foundational numeracy and foundational literacy जो पहले नहीं हुआ करता था, या ऐसी क्या नीड चेंज हुई है? इट इज़ ऑल अबाउट, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होती थी चीज़ें, जो जैसे बच्चे ने एक्विजिशन करना है वो सेम है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी सेम है, पेस ऑफ डेवलपमेंट में वेरी, तो उसको बस डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। प्लस लोगों में पहले अवेयरनेस नहीं थी, अब लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए कि हाँ जी, ये जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो, अगर हम फाउंडेशनल लिटरेसी की बात करें, पहले फोनिक्स की कोई बात नहीं करता था, हमने भी फोनिक्स नहीं पढ़े हैं। अब इट हैज़, रिसर्च हैज़ प्रूवन कि अगर बच्चे को हम फोनिक्स स्टार्टिंग से ही एक्वेंट करते हैं, उसका वैसे डेवलप करते हैं उसके स्किल्स, सो द चाइल्ड बिकम्स मोर कॉन्फिडेंट रीडर, अ फ्लुएंट स्पीकर एंड अ गुड राइटर। एलोक्यूशन स्किल्स और दूसरे स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं बच्चे के। सो दैट इज़ व्हाट फाउंडेशनल लिटरेसी टॉक्स अबाउट, द फोकस इज ऑन लिटरेसी। एंड वैसे भी देखें, लैंग्वेज, लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच एवरीथिंग गेट्स कनेक्टेड। अब जो हम बोल रहे हैं दैट इज लैंग्वेज, और अगर किसी को नहीं, अगर चाइनीज में मैं बोलूंगी तो शायद किसी को समझ में नहीं आएगी। सो लैंग्वेज तो लिटरेसी पे बहुत ध्यान दिया गया है। नाउ लैंग्वेज एंड लिटरेसी भी डिफरेंट है। लिटरेसी मीन्स कि you can, read and write, but when we talk about language means phonics, you should be able to communicate। कुछ बच्चे होते हैं, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, I was a shy child जब मैं टीन एज में थी, वैसे बड़ा पर्सनल है बट स्टिल मैं शेयर करूंगी। तो पहले मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट थी, हर चीज़ में हाथ उठाना, आंसर देना। देन जब मैं टीन एज में गई, मेरे बहुत पिंपल्स हो गए थे, तो मुझे था कि नहीं, अगर मैं आंसर करूँ, आता था मुझे आंसर, मुझे था, और ये बहुत हर बच्चे में कुछ ना कुछ होता है। सो दैट वाज बॉडी शेमिंग ऑल्सो, आई वांट टू टच अपॉन कि हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चा बहुत प्यारा है। तो टीचर को अपने जो कॉन्सेप्ट्स है वो ऐसे इंटरवोवन करने हैं कि कोई भी बच्चे को ना बायस ना लगे और सारी चीज़ें कवर हों। तो शायद उस टाइम पे ये चीज़ें कुछ मिसिंग थी, हम सोशो इमोशनल में लाइफ स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो मैं हाथ ही नहीं खड़ा करती थी, मुझे बहुत सारे आंसर्स आते थे कि मुझे था मैं अगर खड़ी होंगी सबका ध्यान मेरे पे जाएगा। सो ऐसे ही एक बच्चे पे, अगर कोई बच्चा, आई फील के हो सकता है शाय हो सकता है कि देयर मे बी एनी रीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट इंक्लूसिविटी ऑल्सो हेयर। तो उस चीज पे भी हर बच्चे पे ध्यान देना चाहिए, हर बच्चा इम्पोर्टेंट है, ब्यूटीफुल है। a teacher should be creative enough to give wings to the child so that he or she can shine without ये जो हमारे जो सोशल कुछ स्टिग्मास है सोसाइटी के, उनको ओवरकम करने की हमें बहुत ज़रूरत है अगर हम होलिस्टिक डेवलपमेंट सच में चाहते हैं। सो देयर हैज़ बीन अ चेंज। और एफएलएन जैसे मैंने कहा, तो हर एक चीज़ में अब आईक्यू नहीं है, अब ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे ही अगर मैं लैंग्वेज लिटरेसी के बाद न्यूमरेसी की बात करूं, कि अगर हम कैलकुलेटिव नहीं है,
प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं है बच्चे में, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स नहीं है, बच्चा अगर कुछ क्रिएट ही नहीं कर पाता, सिर्फ सुनता रहता है, तो बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा लाइफ में। सो एफएलएन को इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, और इससे भी ज़्यादा फोकस किया गया है कि टीचर हैज़ टू बी अ गाइड, एज अ मेंटोर, एज अ फैसिलिटेटर, एंड नॉट एज जो टिपिकल एक टीचर का एक है ना, एज अ स्ट्रिक्ट अथॉरिटेरियन, वो नहीं होना चाहिए। लेट द सेशन हैज़ टू बी वेरी वेरी इंटरैक्टिव, हर सेशन में मज़ा आए। कई बार ऐसा होता है कि जो टीचर का ना मूड होता है, उसके बेसिस पे जो है रिदम ऑफ द क्लास गेट्स सेट। तो टीचर का जो मूड है, उससे बच्चे की टीचिंग इम्पैक्ट ना करे। कीपिंग दैट इन माइंड, हमने जो स्प्राउट में लेसन प्लान्स बनाए हैं, तो टीचर का मूड जैसा भी है, बच्चे की लर्निंग इम्पैक्ट नहीं होगी, क्योंकि हमने डायलॉग्स भी डाल दिए हैं उसमें। और कई बार ऐसे होता है कि एक टीचर के लैंग्वेज स्किल्स तो बहुत अच्छे हैं, दूसरे क्लासरूम में जो टीचर है उसके में भी इतने अच्छे नहीं है, तो डायलॉग्स डालने से ये हो गया, तो यूनिफॉर्मिटी आएगी। बच्चे की जो बेसिक की वर्ड्स है, की सेंटेंसेस हैं, वो सफर नहीं करेगी, स्टैंडर्डाइज एजुकेशन का। स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगी। मैम जैसे हमने ईक्यू की बात करी, इमोशनल क्वेश्चन, तो ये मतलब इट्स वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। ऐसा बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे स्कूल्स ने ऐसा विटनेस किया है कि कोविड के बाद जो ईक्यू है स्पेशली यंग स्टूडेंट्स के अंदर, वो थोड़ा सा डिक्लाइन किया है। वुड यू अग्री? यस। आपको क्या लगता है इसका क्या रीजन है? इज इट ओनली बिकॉज ऑफ द डिजिटल एक्सपोजर दैट दे वर गेटिंग, और आर देयर मल्टीपल रीजंस टू इट जो हम शायद कहीं ना कहीं समझने में या केटर करने में अभी थोड़ा सा गैप है? आपको व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन मुझे लगता है देर आर टू रीजंस। हम ना ये इमोशनल, जो इमोशनल क्वेश्चन, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, अभी भी बहुत सारे स्कूल्स हैं जो इन पे फोकस नहीं करते। द फोकस इज कि 10th के सीबीएसई और उसमें रिजल्ट बहुत अच्छा आना चाहिए, कि हमारे स्कूल ने टॉप किया या हमारे बच्चों ने टॉप किया। अभी भी फोकस कुछ स्कूल्स का वही है। तो आई थिंक कि अगर बच्चे ने एवरेज या अबव एवरेज भी मार्क्स गेन करे, और बच्चे ने रिजिलियंस डेवलप करा लाइफ में अपने, एंड मतलब हमने ऐसा एक्सपोजर ही नहीं दिया। ऑल्दो हैप्पीनेस करिकुलम, ये सब चीज़ें लॉन्च हुई हैं, लॉन्च करना इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी, इम्प्लीमेंटेशन इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी, एंड वो बच्चे ने कितना ग्रास्प किया, वो एक थर्ड स्टोरी है। एज आई ऑलवेज से, नॉलेज इज नॉट पावर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट नॉलेज इज पावर। एंड इम्प्लीमेंटेशन के बाद उस नॉलेज ने कितना चेंज लाई, वो नॉलेज, दैट इज व्हाट मैटर्स। कोविड में इसीलिए भी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल नोबडी वॉज प्रिपेयर्ड कि ऐसे भी कुछ होगा। फिर वी वेंट टूवर्ड्स द डिजिटाइजेशन, जिसमें हाइब्रिड बहुत सारी हमने चीज़ें करी, बहुत चीज़ें सीखी। बट उसका अब रिजल्ट ये भी है कि बच्चे अब इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं टेक्नोलॉजी से, कि अब उनके लिए ना, मतलब वो क्लासरूम में ज़्यादा देर तक बिठाना, और दे कैन नॉट लिसन। हमारा सबका वॉलेटाइल अटेंशन स्पैन ही है, बट अब तो अटेंशन स्पैन एज पर द रिसर्च और कम हो गया है। एंड जो बच्चों में पहले एक फीलिंग होती थी ना, हाँ टीचर आई है, टीचर यूज टू कमांड रिस्पेक्ट, अब सिनेरियो आ गया, अब टीचर हैज टू डिमांड रिस्पेक्ट, कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ तो सुन लो, क्योंकि अब सब कुछ ही मोबाइल पे आ गया है, डिजिटल है, कुछ भी आंसर चाहिए, अब तो एआई आ गया है, सो दे जस्ट टाइप इट, एंड टीचर से भी अच्छे आंसर्स वो ग्रास्प कर लेते हैं। this? Takes me to a different side of the conversation. Do you personally think that giving digital time or allowing students to spend time on digital devices and technology is bad, or is it good? See, excess of everything is bad, and I feel there should be a balance. हमने उनको एकदम रिफ्रेन नहीं करना, क्योंकि 21st सेंचुरी लर्नर्स हैं, डिजिटल लर्नर्स हैं, तो देयर कुछ बैलेंस के जिसमें वो टेक्नोलॉजी भी एक्सप्लोर कर ले, बट वो किस तरह की वेबसाइट्स विजिट कर रहे हैं या क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं, दैट इज व्हाट मैटर्स। इफ समथिंग वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, सपोज इफ इट इज एडिंग टू देयर बैंक ऑफ नॉलेज, और जिससे उनकी लाइफ आसान होगी या अच्छी होगी, लेट देम एक्सप्लोर।
बट अगर गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं देन वी नीड टू पुट अ फुल स्टॉप. सो ऐसे अवेयरनेस कैंपेन्स और ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत ज़रूरत है, पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी, क्योंकि आजकल बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो वर्किंग हैं और हर बच्चे के पास मोबाइल है, फिफ्थ क्लास हो या सिक्स क्लास हो. सो वी नीड टू मेक देम अवेयर, और उनको जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगी ना, कोई फायदा ही नहीं है. इससे मैम एक और क्वेश्चन माइंड हाँ में जी. आया. हाँ जी. Does the new education policy 2020 talk about allowing students a specific time on digital equipments, या क्या ऐसी कोई गाइडलाइंस अभी तक इंडिया के अंदर, एनीथिंग यू केम अक्रॉस? यस. वैसे तो 20 मिनट्स कहते थे, 20 मिनट्स का स्क्रीन टाइम छोटे बच्चों पर के डे. लिए. यस, पर डे. बट क्या होता है, ऐसे नहीं होता. once you explore, at times you get so immersed into the content, you want to go deeper and deeper and deeper into it. So जब हमारे लिए ही मुश्किल होता है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, हम बच्चों को तो कह रहे हैं मोबाइल नहीं यूज करो, बट हम वो जो सेंटेंस बोलते हैं ना, हम खुद मोबाइल यूज करते करते कर रहे हैं. तो what are we modeling it to the children? Children do not, follow what you tell them to follow. They watch your every action. क्या आप मोबाइल को रिफ्रेन कर पाते हो? क्या? और ये ना, बहुत अच्छा एक मैंने पोस्ट भी डाला था, उसमें था कि क्या हम ऐसे सोशल मीडिया में एज अ शॉप हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं कि 6 बजे के बाद सारा सोशल मीडिया, सब कुछ टेक्नोलॉजी बंद. तब एक बैलेंस हो जाएगा. आप 6 बजे तक यूज करो जो आपको यूज करना है टेक्नोलॉजी, उसके बाद स्पेंड टाइम विद फैमिली, जैसे पुराने जमाने में होता था कि मतलब इमोशनल बॉन्ड होता है. बच्चों को आजकल फैमिलीज का ना मतलब भी नहीं पता. फैमिली मतलब, हाँ, क्योंकि सारे दूर दूर भी हैं, सब इतने ज्यादा अपने अपने कामों में, लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, इतनी सारी चीजें हैं, तो वो एक जगह अपनी अटेंशन फोकस नहीं कर पाते. पहले शॉपिंग करने जाना होता था, हम जाते थे बाहर, चलो शॉपिंग पे जा रहे हैं. अब तो इट्स जस्ट अ क्लिक अवे. देर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर एवरीथिंग. इवन फूड, यू टॉक अबाउट वेजिटेबल्स, सब कुछ एट द क्लिक ऑफ अ बटन. सो बहुत चीजें चेंज हो गई हैं. मैम इसी तरह से जैसे हम बात कर रहे थे, तो आई जस्ट रिमेम्बर्ड रिसेंटली आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू गो ऑन अ विजिट टू सिंगापुर एंड एक्सप्लोर द प्री स्कूल एजुकेशन मार्केट. तो जो प्री स्कूल एजुकेशन सिंगापुर के अंदर प्रमोट होता है, दैट इज दैट दे डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक curriculum or any specific framework. They are very open to different pedagogies. तो किस तरह की और pedagogies schools follow करते हैं for preschool education, and मतलब would you be able to tell us कि थोड़ा सा इन pedagogies का difference क्या होता है, किसका क्या एम होता है, किसका कैसे, कुछ थोड़ा सा? राइट, श्योर, वेरी गुड क्वेश्चन. जैसे अगर हम पेडागोजीज की बात करें, नाउ देर आर टू टर्म्स. पेडागोजी इज द आर्ट ऑफ टीचिंग लर्नर्स. एक होती है एंड्रागोजी, आर्ट ऑफ टीचिंग एडल्ट्स. अब जब हम आर्ट ऑफ टीचिंग यंग लर्नर्स की बात करते हैं, इट वेरीज. वैसे प्ले वे मेथड को हम प्रमोट करते हैं. प्ले वे में भी बहुत सारी डिविजन्स है. अब अगर मैं प्ले वे का एग्जाम्पल दूं, प्लेवे में बच्चा इज फ्री टू चूज वट एवर द चाइल्ड वॉन्ट्स. देन अगर मैं एक्सपीरियंशियल की बात करूं, बहुत फेमस पेडागोजी है, तो उसमें ये है कि जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, हमें लर्न नहीं होगा. एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज, सपोज बच्चा बच्चा टीचर के साथ गया गार्डन में, उसने वहां पे बटरफ्लाई देखी, क्लास में आई, टीचर ने बोला लेट्स ड्रॉ अ कलरफुल बटरफ्लाई. दिस इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग. एक हो गई हैंड्स ऑन लर्निंग. हैंड्स ऑन लर्निंग में बच्चे ने क्या किया, स्ट्रिंगिंग द बीड्स जब करता है, या शू लेस वाली टाई करता है, दैट इज ऑल हैंड्स ऑन लर्निंग. तो ये बहुत तरह की पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस हैं, विच डिपेंड्स. अब कुछ पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस हैं जिसमें हम कहते हैं कि बुक्स होनी चाहिए. अब बुक्स से क्या होता है, फ्रेमवर्क मिल जाता है, बट बुक्स होने के बाद भी हम कहते हैं ये चाइल्ड सेंटर्ड ही है. बुक्स सिर्फ एक डायरेक्शन दे रही हैं, एक रोड मैप दे रही हैं, दैट दिस इज व्हाट द चाइल्ड विल बी डूइंग. दिस इज, क्योंकि हर एक को पता होना चाहिए व्हाट इज माय डेस्टिनेशन. एंड आई फील जैसे वन ऑफ द वेरी फेमस पेडागोजीज इज रेजियो एमिलिया. इट फोकसेस ऑन के ओपन एंडेड हो, ओपन एंडेड क्वेश्चंस बच्चे से पूछे जाए, एंड दैट, एंड इन दैट द टीचर इज अ पार्टनर.
कि चलो आप करो, मैं आपके साथ कलर करती हूँ, यू चूज व्हाट यू वांट टू डू। और अगर हम मोंटेसरी की बात करें, सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड हैं, उसमें मोंटेसरी के प्री डिफाइंड टूल्स हैं। हाँ, उसमें टीचर ऑब्जर्वर है मोंटेसरी में। बच्चे ने अगर पिंक टॉवर बनाना है, सपोज ठीक नहीं बना, वो बच्चा फिर से ट्राई करेगा, फिर से करेगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन के हम क्या, व्हाट इज द आउटकम दैट वी वांट। क्या हम बच्चे की क्रिएटिविटी को डेवलप करना चाहते हैं, क्या हम बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं ज़्यादा। सी द फोकस इज होलिस्टिक डेवलपमेंट, बट इट डिपेंड्स किस तरह के स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में। देन यू कैन डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन विद रिस्पेक्ट टू कंटेंट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। एंड रिजल्ट क्या चाहते हो, उसके हिसाब से यू चूज पेडागोजी। जैसे इंडिया में मोस्टली कन्वेंशनल है, एंड आई फील के ऑब्वियसली पता होना चाहिए ना कि बच्चा क्या कर रहा है स्कूल में, फिर टीचर को क्या पढ़ाना है, रोड मैप इज सेट। बट अगर हम रेजियो एमिलिया की बात करें, उसमें कुछ बच्चा डिसाइड कर रहा है, बच्चा चूज कर रहा है, एंड आई फील टू सम एक्सटेंट इट इज गुड। बट बहुत ज्यादा भी बच्चे को फ्रीडम देना ना, बच्चे को खुद ही नहीं, वो खुद लर्न कर रहा है, तो कुछ स्किल्स जो हैं उसमें वो रह जाते हैं। दिस इज व्हाट आई फील। मैम, क्या ऐसा नहीं लगता कि जितनी भी पेडागोजीज हैं, बी इट रीजियो अमीलिया, बी इट मोंटेसरी, बी इट ब्लूम्स टेक्सोनमी, बी इट प्ले एंड लर्न, क्या सारी ही तरह की पेडागोजीज किसी तरह की कंफर्मिटी को प्रमोट करती हैं? देखो, confirmation तो as such nothing is confirmed, and in education is a dynamic field, every second it changes. So it depends upon the learner also, उसके बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करता है, लर्नर की इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, एबिलिटीज पे डिपेंड करता है, स्किल्स पे डिपेंड करता है, प्लस उसको किस तरह का एक्सपोजर मिल रहा है घर में, किस तरह के लोगों से वो बात कर रहा है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स। सो एक ऑन एन एवरेज अगर हम कहें, जैसे हम लर्निंग आउटकम्स फ्रेम करते हैं यूजिंग ब्लूम्स टेक्सोनमी। ब्लूम्स टेक्सोनमी एक बहुत अच्छी टेक्सोनमी है जो हर एक फील्ड में यूज होती है, जिसमें हम लर्निंग आउटकम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिजाइन करते हैं। जैसे इसके भी लेवल्स होते हैं। अब दो दो तरह की ये चेंज हो चुकी हैं अब, जैसे रिमेम्बरिंग हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, एप्लीकेशन हो गया, देन एनालिसिस हो गया, देन सिंथेसिस हो गया, एंड देन इवैल्यूएशन, ये लेटेस्ट वाली है। इसमें क्या करा है इन्होंने, वर्ब प्लस आईएनजी लगा दिया है, एंड इट फ्लोज लाइक दिस, वेरी वेरी लॉजिकल फ्लो, कि सबसे पहले बच्चा जो है वो नॉलेज गेन करेगा, या कोई भी है हम रिमेम्बर करेंगे, उसको रिकॉल करेंगे इंफॉर्मेशन को, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे। अंडरस्टैंडिंग मीन्स हम अपने ही वर्ड्स में उसको बताने की कोशिश करेंगे। थर्ड स्टेप इज हम अप्लाई करेंगे जो भी हमने सीखा है। देन फोर्थ इज हम एनालाइज करेंगे, फिर हम उसको सिंथेसाइज करेंगे, एंड फाइनली वी विल बी इन अ पोजिशन टू इवेल्युएट। सो दिस इज हाउ द टेक्सोनमी गोज फ्रॉम रिमेम्बरिंग टू क्रिएशन लेवल। पर क्या हम सारे सब्जेक्ट्स में क्रिएशन लेवल तक पहुंचते हैं, या सारे सब्जेक्ट्स के सारे कॉन्सेप्ट्स पे हम क्रिएशन लेवल पे पहुंचते हैं? नहीं। इस पे भी बहुत अच्छी अच्छी थियोरिस्ट ने किया है, जैसे वाइगॉट्स्की ने किया है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उसमें वो एक जोन डिफाइन कर देता है कि इसमें तो बच्चे को ये चीज तो आनी ही आनी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देन द टीचर नीड्स टू थिंक, ओके व्हाट इज द बिग क्वेश्चन, व्हाट इज द बिग आइडिया, व्हाई एम आई टीचिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। क्या मेरा एम है कि बच्चे को डेफिनेशंस रटवानी है, वो तो रिमेम्बरिंग लेवल पे हो गया। बट अब जो, जैसे एनी बी ऑल्सो टॉक्स अबाउट दैट वी मस्ट टॉक अबाउट, वी मस्ट इम्बाइब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जो कि एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन लेवल के हैं। सो दैट वेज। तो मैम, जैसे कि हम बात करते तो स्प्राउट का में देयर इज अ लॉट अबाउट द टीचर एंड द रोल ऑफ टीचर, हाउ टू इंक्रीज और हाउ टू मेक दैट रोल प्ले मोर एफिशिएंटली, उसके बारे में कुछ आप? तो वी हैव thought from the point of view of a teacher also, because we know the pain area of a teacher। एक जो टीचर का पेन एरिया होता है, डेली चैलेंज,
कि पहले तो मूड अच्छा होना चाहिए, हमने उस पे भी वर्क किया है। मूड कब अच्छा होगा? जब टीचर के पास सब कुछ बुफे रेडी होगा। शी जस्ट हैव टू सर्व, कि उसको कुछ लेसन प्लानिंग की टेंशन नहीं लेनी, उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। उसको वर्कशीट्स नहीं बनानी, उसको असेसमेंट शीट्स नहीं बनानी, उसको ये नहीं सोचना अच्छा आज मैं क्या पढ़ाऊँगी, कैसे पढ़ाऊँगी। सब कुछ एवरीथिंग इज़ देयर। सी इट इज़ लाइक अ करिकुलम। करिकुलम क्या है? एक जैसे प्लेट में सारी चीज़ें हैं, एवरीथिंग इज़ देयर, फ्रॉम चपाती टू वेजिटेबल्स टिल डिज़र्ट। और अगर हम सिलेबस की भी बात करें, अच्छा एक और बहुत कन्फ्यूजन होती है कि सिलेबस और करिकुलम क्या सेम है? नहीं, सिलेबस और करिकुलम डिफरेंट है। सिलेबस इज द कंटेंट, सिलेबस इज लाइक सपोज आपकी थाली है, सिलेबस इज लाइक अ सैलेड एंड करिकुलम इज बाकी सारी चीजें। सो It's like सजी a हुई buffet. बूफे, यस अ बूफे टिल द डिजर्ट। तो बहुत सारी चीजें और सबके लिए हैं वो। सो हमने थाली सजा दी है स्प्राउट में, 7 कोर्स मील बना दी है और अब सर्व कर दी है। अब आप उसको बच्चों, आप उसमें से क्या लेते हो आपने इम्प्लीमेंट करना है, दैट्स इट। अब वो देर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर एवरीथिंग। अब आपके पास अपने लिए भी टाइम है एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस। आप अब ये नहीं कहोगे कि स्कूल वाले बहुत काम देते हैं, मैं घर पे भी फ्री नहीं होती। अब आप फ्री ही फ्री हो। Two last questions, ma'am. हाँ जी। Uh, बहुत सारे पेरेंट्स का और स्कूल्स का ये एक मन का एक एक डिसएग्रीमेंट है, एंड आई फील इट्स अ डाइकोटमी, मोर ऑफ अ डाइकोटमी। द पेरेंट्स एक्सपेक्ट कि स्कूल को, जब मैंने अपने बच्चे को स्कूल में डाल दिया और मैंने स्कूल में भेज दिया, तो इट इज नाउ स्कूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच एवरीथिंग। एंड एट द सेम टाइम द स्कूल इज अंडर द इम्प्रेशन और इज अंडर द थॉट प्रोसेस कि सिर्फ बच्चे को मेरे पास भेज देने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज द चाइल्ड इज ओनली स्पेंडिंग a couple of hours, a limited time, maybe 4 hours, 5 hours, extended में अगर crèche या daycare है, so 6 or 7 hours. But a lot of the time and a lot of the exposure that the child is getting is from the home. So इस dichotomy को दूर करने के लिए या इस dichotomy को थोड़ा सा और easy बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? आप स्प्राउट करिकुलम यूज़ करो, क्योंकि हमने इसका सॉल्यूशन उसमें दिया है, कैसे हमने पेरेंट्स के लिए भी बनाया है एंड सिल्क बनाया है, स्प्राउट इंटीग्रेटेड लर्निंग किट। प्लस आई ऑल्सो बिलीव कि एक पेरेंट कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि सिर्फ टीचर ही एक के पास एक मैजिक वॉन्ड है, वो वेव करेगी और बच्चा डेवलप हो जाएगा। इट इज़ ऑलवेज अ टू वे पार्टनरशिप एंड देर इज़ अ वेरी फेमस सेइंग दैट इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। तो जो टीचर है वो सिर्फ एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, बट हम उसको सिर्फ टीचर पे नहीं छोड़ सकते। अब बच्चा घर आया है, आप क्या कर रहे हो? तो इसके लिए अब आप टीचर तो घर पे नहीं लेके जा सकते हो। तो हमने बहुत अच्छा टूल है स्पीको पेन, जो घर पे बच्चा यूज कर सकता है। अब बच्चा लगा हुआ है, जितनी बार भी सुने, क्योंकि रेपिटेटिवनेस इज व्हाट ड्राइव्स प्री प्राइमरी एजुकेशन। बच्चा रिपीटेड चीजें बहुत बार सुनता है क्योंकि वॉलेटाइल अटेंशन स्पैन होता है। ऐसे ही हमारी राइम्स एंड रिदम में भी बहुत सारी ऐसी लाइंस हैं जो रिपीट होती हैं, बच्चा इम्बाइब करता है। अब वो स्पीको पेन से भी लगा हुआ है, जस्ट इमेजिन अगर बच्चा स्पीको पेन से लगा हुआ है, सिल्क किट है उसके पास, तो पेरेंट को भी पता है कि मैंने, हाँ बच्चे के साथ मैं ये DIY एक्टिविटीज कर रहा हूँ। हाउ ब्यूटिफुल इट वुड बी। बच्चे को लग रहा है हाँ पेरेंट मोबाइल साइड में रख के मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, मेरे, और वो कौन सी वो चीजें कर रहा है जो मैं स्कूल में करता हूँ। हाउ ब्यूटिफुल बॉन्डिंग, और जिसको हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कहते हैं, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू स्ट्रेंथन। एंड ये दोनों को समझना चाहिए, कि टीचर को भी पेरेंट को भी, दैट इट इज ऑलवेज अ टू वे पार्टनरशिप। किसी के पास भी मैजिक वॉन्ड नहीं है, इट ऑलवेज वर्क इन यूनिसन। What are some of the major pain points of a preschool that are, running today without any kind of pedagogy or any kind of curriculum? या जिस स्कूल के पास मतलब pre opening a preschool in India is pretty easy and it is pretty accessible to everyone, and there are a lot of teachers in India that there are a lot of teachers who are passionate about teaching students. So after school, they take care of students, they run some kind of preschool or some kind of Montessori school in their own premises. तो उन schools का सबसे बड़ा challenge या उन schools को पेरेंट्स किस तरह से व्यू करते हैं या किस तरह से व्यू करना चाहिए,
उसके बारे में कुछ अगर आप बता पाओ। ओके, जस्ट इमेजिन अगर किसी बच्चे को कोई गुरु गाइड, किसी स्कूल को कोई गुरु गाइड करने वाला है, और एक जो स्कूल है कोई गुरु नहीं है, वो समझता है मैं खुद ही गुरु हूँ, तो क्या होगा? जिसको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, जिसके ऊपर एक अम्ब्रेला है, जिसको पता है कि ऐसे करना है, इसको करने से रिजल्ट आएगा, इसको करने से रिजल्ट नहीं आएगा, तो एज अ पेरेंट आई वुड वांट माय चाइल्ड टू गो टू दैट स्कूल जहाँ पे गुरु है, जहाँ पे एक सब कुछ सेट है, रोड मैप है। तो वहाँ पे मेरा बच्चा ज़्यादा सेफ और सिक्योर रहेगा, क्योंकि प्री स्कूल में सबसे ज़्यादा मैं सेफ्टी सिक्योरिटी को पे फोकस करूँगी एज अ पेरेंट। फिर मैं ऑफ कोर्स करिकुलम पे भी फोकस करूँगी। ऑफ कोर्स आई वुड फोकस कि किस तरह के बच्चे जा रहे हैं, प्लस आई वुड ऑल्सो फोकस जो इसको लीड कर रहा है, क्या वो उस कैपेसिटी में है, एक्सपीरियंस्ड है, क्या उसको नॉलेज, स्किल और वैसा एटीट्यूड है टू सर्व द प्री स्कूल इंडस्ट्री। तो और जो दूसरा स्कूल है जिसका कोई गुरु नहीं है, जो अपने को ही समझता है, वो ट्रायल एंड एरर पे जाएगा, तो मेरा बच्चा वहाँ सेफ नहीं रहेगा। जो ये वाला स्कूल है, स्टैंड अलोन स्कूल्स हाँ, हैं या स्टैंड अलोन स्कूल्स हैं। तो आजकल का जो एक लिटरेट अच्छा पेरेंट होगा, वो नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा उस स्कूल में जाए। अगर हम कोई पेरेंट्स हमारे पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो एट व्हाट एज और व्हाट इज द करेक्ट टाइम टू गेट देयर किड्स एनरोल्ड इन अ प्री स्कूल? ऑल राइट, नाउ अब डिफरेंट कंट्रीज की भी बात करें ना, डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे अगर हमारे यहाँ पे भी स्टार्ट हो गया मदर टॉडलर प्रोग्राम, जिसमें कि 1 साल से लेके 2 साल तक के बच्चे मदर्स के साथ स्कूल में जाते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ एक्सप्लोर करते हैं, ताकि उनको एनवायरनमेंट, वो कंफर्ट आ जाए दैट देर इज समथिंग कॉल्ड स्कूल ऑल्सो, देर इज समथिंग कॉल्ड टीचर ऑल्सो, ये बुक्स हैं, ये चीज़ें हैं, यहाँ मुझे ऐसे करके बैठना होता है। तो हम एज सून एज पॉसिबल, देन 2 years वैसे फॉर्मली अगर बच्चे को अकेले भेजना है टू मेक हिम इंडिपेंडेंट, 2 years इज द राइट एज। हम जब स्प्राउट की बात करते हैं तो स्प्राउट इज बेस्ड ऑन मल्टीपल इंटेलिजेंसेस. What is multiple intelligences, the pedagogy that we follow in Sprout? वंडरफुल क्वेश्चन। सो अगर हम मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करें, ना मल्टीपल इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द पिलर्स जिस पे स्प्राउट बेस्ड है, और भी चीज़ों पे बेस्ड है, बट डेफिनेटली मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है, ये एक थ्योरी प्रपाउंड की थी डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर ने 1983 में। उन्होंने 7 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस बताई कि हर ह्यूमन बीइंग में, हर बच्चे में 7 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस होती है। एक मोस्ट डोमिनेंट इंटेलिजेंस होती है, बाकी जो हैं वो भी होती हैं, बट वो जो डोमिनेंट इंटेलिजेंस है वो उनको ओवरशेडो करती है। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने 8 इंटेलिजेंसेस डेवलप की, फिर 9 करी। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि जब भी टीचर क्लासरूम में जाके पढ़ाएगी, वो हर एक बच्चे के हिसाब से सोचेगी। सपोज कोई विजुअल लर्नर है, उसको कॉन्सेप्ट कराना है सीजन का, तो अब वो सोचेगी अच्छा मैं विजुअल लर्नर को ये सीजन का कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ा सकती हूँ। या कोई लिंग्विस्टिक लर्नर है जिसकी मोस्ट डोमिनेंट इंटेलिजेंस है लिंग्विस्टिक, तो अब मैं ऐसे बच्चे को, लैंग्वेज वाले बच्चे को कैसे समझाऊंगी। या किसी का कोई बच्चा की म्यूजिकल इंटेलिजेंस मोस्ट डोमिनेंट है, अब मैं इसको म्यूजिकल वे में कैसे बताऊंगी। सो उससे ना बहुत ज़्यादा एरेना एक तरह से ना, इट्स कंप्लीट इकोसिस्टम बन गया है। जब टीचर सोचती है दैट हाउ एम आई गोइंग टू केटर टू द नीड्स ऑफ ऑल दीज लर्नर्स इन द क्लासरूम, क्योंकि कोई लिंग्विस्टिकली ब्लेस्ड हो सकता है जिसकी मोस्ट डोमिनेंट इंटेलिजेंस लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, जो लैंग्वेज से सीखता है, ऐसे बच्चे चुप ही नहीं होते जैसे कि मैं। नेक्स्ट हो सकता है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, वो जो बड़े लॉजिक से पूछते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना जो आपको छोड़ते ही नहीं है, पूछते हैं मैम वाई हाउ, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। मीन्स वो स्टार्टिंग से ही उनमें सीड्स डल जाते हैं कि लॉजिकल फील्ड्स में जाते हैं, जैसे सीए, जैसे मेरे हस्बैंड। फिर अगर कुछ और होते हैं जैसे कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो गई, बच्चे राइम और रिदम से सीखते हैं। कुछ हो गए बच्चे जो नेचर में जाके सीखते हैं। कुछ बच्चे हो गए जो इंटरपर्सनली सीखते हैं कि नहीं मैं दूसरे को समझाऊंगा तब मुझे समझ आएगा। कुछ बच्चे हैं जो इंट्रापर्सनल मेथड से सीखते हैं कि नहीं मैं अपने आप ही नोट्स बना के सीखूंगा।
कुछ हैं जो विजुअल देख के सीखते हैं, और जो अगर हम नाइन्थ इंटेलिजेंस की बात करें जो लेटर इट वाज डिस्कवर्ड, इट वाज द स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। अब कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जिनको पता, जो बहुत क्यूरियस होते हैं, मैं कहाँ से आया, ये किसने बनाया, यूनिवर्स, सन किसने बनाया, मून किसने बनाया, देन व्हाट इज द मैकेनिज्म दैट इज ड्राइविंग अस। सो ये सारी चीज़ें ये उन बच्चों के लिए। तो जब एक टीचर डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचती है, तो डेफिनेटली स्प्राउट भी उसी मोटिव से बना है कि एक कॉन्सेप्ट को हम डिफरेंट वेज में कैसे पढ़ा सकते हैं टू केटर टू द नीड्स ऑफ ऑल द लर्नर्स इन द क्लासरूम। और हम इनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बहुत इजीली थ्रू ऑब्जर्वेशन। जैसे जो बच्चे बहुत बोलने वाले हैं, मीन्स उनमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, मीन्स ये लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। एंड ट्रस्ट मी, अगर पेरेंट भी ये चीज समझ जाए तो उनको कभी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत ना पड़े कि मेरा बच्चा आगे जाके क्या करियर बने। चूज करना है। सो इट इज वेरी वेरी लॉजिकल एंड वन ऑफ द बेस्ट थियरीज which have been मतलब worked upon till date. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for coming to the podcast and telling us so much about the preschool education curriculum, how it is done, what are the different pedagogies. Such an interesting talk. We could have taken it for so much longer, but thank you so much, ma'am, and thank you for coming on the podcast. Thank you so much, Akash sir, for giving us a platform to share our ideas, and wish you all the success. It's a wonderful idea. Keep up the good work. Thank you so much.